नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेक्चर नंबर 3, राइट? थर्ड होगा ना लेक्चर हमारा, या सेकंड है? All right, next example number 1. Find the extremal of the function thank you Adil and Umar 0 to pi by 2 y dash square minus y square plus 2x into y into dy with y of 0 is equal to 0 and y of pi by 2 is equal to 0. This question was asked in 2016 examination. आगे भी पूछा होगा, लेकिन अभी रिकॉर्ड में जितना है हमारे पास 2016 में पूछा था. You find the extremum of the function this integration 0 to pi by 2 y dash square minus y square plus 2xy. Here in this example your functional is just neglect this integration sign and dy. The remaining part is your functional, that is y dash square minus y square plus 2xy. Usually your functional must contain xy and contains xy and y dash. In this functional also we have x, y and y dash. So since f contains x comma y dash, so which formula we will use? We use Euler's equation, right? What is Euler's equation? Dou f by dou y minus d by dx of dou f by dou y dash equal to 0. Call this 1 and this as 2. Now for solving this equation 2 or finding the extremal, we have to first of all find the partial derivative of f with respect to y and with respect to y dash first. So differentiate 1 with respect to y first. What is derivative of f with respect to y partially? ये तो y dash square है तो ये constant रहेगा 0. What is derivative of this? माइनस y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस 2y प्लस 2x इंटू वाई है. 2x तो कांस्टेंट है एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ y with respect to y is 1 and therefore dou f by dou y become minus 2y plus 2x. Similarly we have to find partial derivative of f with respect to y dash. y dash सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे भी y dash नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है. So the derivative, partial derivative of y dash square is 2 into y dash, right? Using these values in equation number 2, 2 becomes dou f by dou y, that is minus 2y plus 2x minus d by dx of 2 into y dash equal to 0. Now if you see every term contains 2, so dividing both sides or dividing by 2, so ये बन जाएगा y plus x minus d by dx of y dash. Y dash is nothing but dy by dx equal to 0. जब आप डबल एक पार्शियल एक डेरिवेटिव है पहले उसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव बन जाएगा. सो दिस विल बी नथिंग बट ये माइनस वाई है, माइनस वाई प्लस एक्स माइनस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. डबल डेरिवेटिव बन गया. अब इस डी टू वाई को और इस माइनस वाई को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड पे एंड देन अगेन राइटिंग राइट हैंड साइड एज लेफ्ट हैंड साइड. योर इक्वेशन बिकम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स. ये स्टेप समझ में आई क्या? आपने इन दोनों को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो दोनों प्लस बन जाएंगे. प्लस बनने के बाद में यहाँ पे x रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड का x यहाँ लिख दिया और राइट हैंड साइड की जो टर्म्स है वो यहाँ लिख दिए. राइट, यहाँ तक क्लियर है? नाउ दिस इज व्हाट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट. इसीलिए आपको फॉर्मूला बोला था कि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के जो फॉर्मूला है वो चाहिए होंगे. डायरेक्ट सेकेंडरी पीपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
is a topic, is a module in first year second semester in which अगर आपको कोई linear differential equation with constant coefficient का solution find out करना है तो इसका general solution is consist of two parts. First is yc, that is complementary function. Second is yp, that is particular integral. I'll write down cf denote complementary function, pi यानी particular integral. जो जनरल सोल्यूशन होता है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में होता है. ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे. सो यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करता हूँ d2y by dx स्क्वायर को आई कैन राइट एज d स्क्वायर y प्लस y इक्वल टू x. यहाँ पे लिखता हूँ मैं d2y by dx स्क्वायर को हम लोग डिनोट कर सकते हैं d2y से भी, कैपिटल d2y से. ये सब आपका प्री रिक्विजिट है, जो आप कुछ लोगों ने बोला था ना कि सर हमने तो पढ़ा नहीं, हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए दे रहा हूँ. ठीक है, अब यहाँ से भी I can take out y common from this left hand side, so d square plus 1 into y equal to x. अब जब आपको सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है CF, तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लेनी होगी. ऑक्सिलरी इक्वेशन इज नथिंग बट ये y और x हटा देना है, जो रिमेनिंग इक्वेशन रहेगी दैट इज योर ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. अब y हटा दो, जो रिमेनिंग टर्म है उसको इक्वेट टू 0 करो, x हटा देना है, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी. और अब इसके रूट्स आपको फाइंड आउट करने होंगे. अगर आप देखेंगे तो d स्क्वायर इक्वल टू -1 हो रहा है. -1 ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है? एक ही है, आई स्क्वायर होता है -1. सो डी स्क्वायर बनेगा आपका, डी स्क्वायर इज आई स्क्वायर, सो डी बन जाएगा आपका प्लस माइनस आई. ऑल ऑफ यू एग्री? आई स्क्वायर का भी आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है और माइनस आई स्क्वायर का भी वैल्यू -1 है. सो वो हो गए आपके रूट. अब यहाँ पे और प्री रिक्विजिट है, ये रूट्स है. रूट इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर तो एटलीस्ट आपको पता होगा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज गिवन बाय yc is equal to e raised to alpha x. देख रहा है क्या सबको? e raised to alpha x c1 cos of beta x plus c2 sin of beta x. जो भी आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ये प्री रिक्विजिट है, आपके फर्स्ट ईयर का टॉपिक है. तो यहाँ पे अगर आप इस नंबर को इससे कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा here in this case alpha plus minus I beta is 0 plus minus I. दिस इम्प्लाइज अल्फा की वैल्यू आपको 0 है और बीटा की वैल्यू 1 है. ऑल ऑफ यू एग्री? अब ये वैल्यू आप यहाँ पे यूज करेंगे फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. देयरफॉर yc आपको मिलेगा e रेज टू अल्फा x, लेकिन अल्फा तो 0 है, सो ये होगा e रेज टू 0x ब्रैकेट के अंदर c1 cos ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू 1 है, सो c1 cos x प्लस c2 sin x. राइट? अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एनी नंबर रेज टू 0 इज 1, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये हट जाएगा. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है आपका c1 cos x प्लस c2 sin x. ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. सो अब आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर लिया है. नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल. ठीक है, इसमें डाउट रहेगा तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो. वैसे भी ये वीडियो भी मैं आपको पोस्ट करने वाला हूँ, आप वहाँ से भी एक और बार देख लेना, अगर डाउट रहेगा तो फिर पूछ सकते हैं आप. अब आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पे. पी आई के लिए क्या करना होगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई का फॉर्मूला होता है 1/f of d इंटू कैपिटल एक्स, वेर कैपिटल एक्स इज नथिंग बट जो राइट हैंड साइड की क्वांटिटी होती है वो. यहाँ पे हेयर इन दिस एग्जाम्पल आपका कैपिटल एक्स है एक्स स्मॉल एक्स, और जब आप राइट हैंड साइड x होता है तो आप x रेज टू m दैट इज नथिंग बट व्हेन कैपिटल X इज x रेज टू m, तो 1/f of d जो होता है इनटू x, उसको आप ट्रांसफॉर्म करते हो 1 + phi of d में या 1 - phi of d में इनटू x रेज टू m, और फिर उसको सॉल्व करते हो. और इसके लिए आपके पास दो चीजें हैं, एक है 1/1 - x टेलर सीरीज में, that is 1 + x + x square + x cube and so on, और दूसरी होती है 1/1 + x that is 1 - x + x square - x cube
प्लस प्लस सो ऑन। इतना कंफ्यूज मत होना या परेशान मत हो जाओ, ये चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाएगी आपको। अभी बस आप समझते चलो कि हाँ चलो ये है, ऐसा करना है। अगर आपका राइट हैंड साइड पे एक्स रेस टू एम है या एक्स रेस टू 1 है तो ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज 1 अपॉन एफ ऑफ डी। अब एफ ऑफ डी क्या है? एफ ऑफ डी है ये पार्ट, डी स्क्वायर प्लस 1, इसको बोला जाता है फंक्शन इन डी, एफ ऑफ डी। तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, जो राइट हैंड साइड पे एक्स है स्मॉल एक्स। अब स्मॉल एक्स से रेस टू 1 कर दो ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, हेयर m इज 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे 1 प्लस सम फंक्शन में लेना था, तो ये 1 प्लस तो है पहले से ही, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 1 प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इस d को ब्रैकेट दे देता हूँ, 1 प्लस फाइव ऑफ डी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रहेगा, तो क्या करते हैं हम लोग 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ पे x की वैल्यू है d, हियर x इज डी स्क्वायर, अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो, राइट। एंड देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल बिकम, इतना ही प्री रिक्विजिट है, उसको बॉक्स कर दिया, ये हमारा सॉल्यूशन है। सो ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस डी स्क्वायर, तो ये बनेगा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस डी, अब x है x लेकिन हमारा डी स्क्वायर है तो हम लोग डी स्क्वायर लिखेंगे, प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस डी स्क्वायर क्यूब एंड सो ऑन, और ब्रैकेट के बाहर x रहेगा इनटू x, राइट। अब अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये x अपनी यहाँ पे ऐसा ही लिख दिया। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो x का फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होता है 1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। x का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं ऑफ x, तो वो 1 का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, यानी सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही आएगा, बाकी जितने भी डेरिवेटिव है सेकेंड ऑर्डर ऑनवर्ड सारे 0 बन रहे हैं। एंड देयरफॉर ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। दिस विल बी नथिंग बट x से मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को, x माइनस डी स्क्वायर ऑफ x प्लस डी रेस टू 4 ऑफ x माइनस डी रेस टू 6 ऑफ x एंड सो ऑन। लेकिन आपको पता है कि ये 0 है क्योंकि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है 1, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा 0। जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 है तो आगे के जितने भी डेरिवेटिव्स है सारे 0 होंगे। एंड देयरफॉर आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए सिर्फ एक टर्म बची है, दैट इज नथिंग बट x। सो यही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आया क्या समझ में सबको? अब एंड देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन is it is given by y is equal to yc plus yp, that is complementary function plus particular integral, and therefore आपका जनरल सॉल्यूशन होगा y is equal to c1 cos of x। आपका जनरल सॉल्यूशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये था, उसको ऐड करेंगे और यहाँ पे ये पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करेंगे, तो c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस x, ये होगा आपका जनरल सॉल्यूशन। ये आंसर है आपका, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला है दो कंडीशंस उन्होंने दिया है कि y ऑफ 0 इज 0 एंड y ऑफ 5/2 इज 0, तो उनको भी यूज करके हमको ये जो कांस्टेंट्स है c1 एंड c2 उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी, राइट। एंड देयरफॉर वी हैव y ऑफ x इज इक्वल टू c1 cos ऑफ x, इसको बस मैंने थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, c2 इंटू साइन ऑफ x प्लस x। अब यहाँ पे दिया है पहली कंडीशन है व्हेन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। y ऑफ 0 इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि दैट इज व्हेन x इज 0 y की वैल्यू भी आपकी 0 है, राइट। एंड देयरफॉर पुटिंग दिस वैल्यू ओवर हियर, x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो y ऑफ 0 इक्वल टू c1 cos 0, यहाँ पे लिखता हूँ मैं पुट x इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। सो पुट x is equal to 4 in 4, so y of 0 is c1 cos 0 plus c2 sin 0 plus 0। अब y of 0 की वैल्यू दी है उन्होंने, दैट इज 0, वो लिख दिया यहाँ पे। c1 cos 0 हमारा होता है 1, तो 1, c2 sin 0 है 0
एंड देयरफॉर आपको मिलेगा कि C2 तो 0 हो गया, C1 into 1 is C1 equal to 0. दिस implies that आपका जो कांस्टेंट था आपके इक्वेशन नंबर 4 में उसकी वैल्यू 0 है C1 की. इज इट राइट? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे. ऑल्सो इट इज गिवन दैट y of pi by 2 is 0. y of pi by 2 equal to 0 का मतलब क्या है कि that is when x is pi by 2 y की वैल्यू आपकी 0 है. सो ये वैल्यू पुट करते हैं, पुट x is equal to pi by 2 in 4 में नहीं करेंगे हम लोग अभी. यूजिंग दिस इक्वेशन आपका जो ये इक्वेशन है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इतनी जगह में. सो जब C1 0 है तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, तो बचेगी सिर्फ ये और ये टर्म. And therefore your new term will be y of x is equal to C2 sin x plus x. यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4 equation implies that. इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5. आपको उसको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करते जाना है कि जब आपको पहला कांस्टेंट आपका 0 मिल गया है तो वो पुट कर देंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी. अब x इज इक्वल टू पाई बाय 2 आप 4 में नहीं पुट करेंगे, आप 5 में पुट करेंगे क्योंकि वो और सिंपलर फॉर्म में मिली है आपको. सो C1 पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 इन 5, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, दिस विल बी नथिंग बट y ऑफ पाई बाय 2 इक्वल टू C2. x की जगह पे आप पाई बाय 2 पुट करें तो यहाँ पे आएगा साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2. अब y ऑफ पाई बाय 2 कितना है आपका, 0 है, राइट. सो y ऑफ पाई बाय 2 इक्वल टू 0. C2 साइन पाई बाय 2 इज 1, सो C2 इंटू 1 प्लस पाई बाय 2. यहाँ से आपको C2 की वैल्यू मिल जाएगी. C2 इंटू 1 इज C2 प्लस पाई बाय 2. इस पाई बाय 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, आपको मिलेगा माइनस पाई बाय 2. सो C2 की वैल्यू है आपकी माइनस पाई बाय 2. सो आपको सेकेंड कांस्टेंट की भी वैल्यू मिल गई है. पुट दिस इन 5, पुट इन 5, and therefore your equation become y of x is equal to minus pi by 2 sin x plus x. ये है आपका फाइनल आंसर. अब यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो मैं इसको थोड़ा सा शायद फॉर्म में लिख सकता हूँ x माइनस पाई बाय 2 साइन x. ये है आपका आंसर. आया सबको समझ में? अनम्यूट करना है आप लोगों को. ये क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? डाउट रहेगा तो पूछ लो. क्लियर है सबको? आदिल, मोइन? यस सर. यस सर. ठीक है, नोट्स भी वैसे भेजूंगा मैं, तो आपको अगर डाउट भी रहेगा तो एक बार देख के और वीडियो देख के भी आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2. Now this was asked in 2014 and 15 examination. Example number 2, find the extremal of integration x1 to x2 y square minus y dash square minus 2y cos hyperbolic x into dx. This is the question we have to find its extremal. अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है, y of 0 0 है या y of pi by 2 1 है या 0 है, ऐसा कुछ नहीं दिया है. यानी आप सिर्फ इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, जो मिल जाएगी y की इक्वेशन वहीं पे आप स्टॉप करेंगे, राइट. अगर इसमें ही कोई इक्वेशन में वैल्यू देते हैं कि y ऑफ 0 इक्वल टू 0 है और y ऑफ पाई बाय 2 1 है, तो आप उनको यूज करके वो जो कांस्टेंट्स है इक्वेशन में या आंसर में उनको सॉल्व करेंगे, राइट. हियर द फंक्शनल कैपिटल F इज y स्क्वायर माइनस y डैश स्क्वायर माइनस 2y cos हाइपरबोलिक x. अब यहाँ पे आपको एक cos हाइपरबोलिक x के लिए भी एक फॉर्मूला है फर्स्ट ईयर में, वो उसकी जरूरत पड़ेगी. cos हाइपरबोलिक x is given by e raised to x plus e raised to minus x divided by 2. डायरेक्ट सेकेंड ईयर लोगों के लिए
स्पेशली बता रहा हूँ, आगे यूज होगा इसका, ठीक है। सबसे पहले तो दिस फंक्शनल कंटेंट्स x, y एंड y डैश। सिंस f contains x comma y dash, so which equation we have to use? Obviously Euler's equation. So we use Euler's equation. Euler's equation is given by dou f by dou y minus d by dx of dou f by dou y dash equal to 0, right? Call this equation number 1, call this equation number 2. Now for solving this equation you need partial derivative of f with respect to y and with respect to y dash. So differentiate f with respect to y. यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, यहाँ पे नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। सिर्फ फर्स्ट और थर्ड टर्म का ही डेरिवेटिव आप लेंगे। कितना होगा वो? 2y माइनस 0 माइनस 2 और कॉस हाइपरबोलिक एक कांस्टेंट है, सिर्फ y का डेरिवेटिव होगा और वो है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 1 cos hyperbolic x. So dou f by dou y आपको मिला है, that is 2y minus 2 cos hyperbolic x, right? अब आते हैं डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y डैश। अगर विथ रिस्पेक्ट टू y डैश देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड टर्म में y डैश है नहीं, तो आपका सिर्फ डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ y डैश स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y डैश इज 2y डैश माइनस 0 and therefore it is nothing but minus 2y dash. Now put these two values in equation number 2. 2 becomes 2y minus 2 cos hyperbolic x minus d by dx of dou f by dou y dash. Dou f by dou y dash is 2y dash equal to 0. Now every term contains 2, so you can divide both sides by 2. तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा y माइनस कॉस हाइपरबोलिक x माइनस ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश इक्वल टू 0, राइट? अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये है y डैश दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, ये है माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स y। अब ये माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं। सो क्या बन जाएगा? ये होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक और स्टेप चाहिए या डायरेक्ट लिख दूं मैं? ये होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, and this is nothing but call this equation number 3 linear differential equation with constant coefficient. Linear differential equation with constant coefficient. अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? y के लिए yc यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट? 10 मिनट के बाद में मीटिंग खत्म होगी और दोबारा से हम लोग ज्वाइन करेंगे। dx स्क्वायर, हाँ dx स्क्वायर, सॉरी किसने बताया? तौसीफ थैंक यू। dx स्क्वायर बन जाएगा ये, राइट? सो दिस इज dx स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x। अब आपको चाहिए yc कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एज वेल एज yp पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। दिस इज नथिंग बट d स्क्वायर y प्लस y इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x। यहाँ से d स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x। इस इक्वेशन में से ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी इज d स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये y हटा दो और ये राइट हैंड साइड पे 0 कर दो, जो इक्वेशन बचेगी दैट इज योर ऑक्सिलरी इक्वेशन। नाउ यू हैव टू फाइंड इट्स रूट्स। आपने पहले क्वेश्चन में भी किया है। d स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 एंड देयरफॉर d इज प्लस माइनस i। अगेन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, राइट? The roots are complex और रूट कॉम्प्लेक्स रहेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इज YC इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है 0 एंड बीटा की वैल्यू है 1। सेम सिमिलर वे में आप करेंगे तो ये आएगा e रेज टू 0x C1 cos x प्लस C2 sin x, राइट? अब e रेज टू 0 तो 1 है एंड देयरफॉर आपका yc होगा C1 cos x
प्लस C2 sin x। ये होगा आपका क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये हुआ आपका कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4। अब आपको चाहिए पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई के लिए फॉर्मूला है 1/f(d) इंटू कैपिटल एक्स। हियर कैपिटल एक्स इज व्हाट, राइट हैंड साइड पे है cos हाइपरबोलिक एक्स, सो कैपिटल एक्स इज cos हाइपरबोलिक एक्स। अब cos हाइपरबोलिक एक्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल के फॉर्मूलाज है उसमें cos हाइपरबोलिक का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो फॉर्मूलाज कौन से है देखो, आदिल ने शायद कल शेयर किया है। फॉर्मूलाज है राइट हैंड साइड पे e रेस टू ax के लिए, देन cos ax sin ax के लिए, देन है x रेस टू m के लिए एंड सो ऑन। सो हाइपरबोलिक के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि cos हाइपरबोलिक के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे ताकि हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सके। कौन सा, ये वाला। एंड देयरफॉर वी हैव कंटिन्यूइंग दिस 1/f(d). f(d) है आपका 1/d² प्लस 1 इंटू एक्स। एक्स है हमारा cos हाइपरबोलिक एक्स। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं d² प्लस 1 into cos hyperbolic x I can write as e raised to x plus e raised to minus x by 2। ये लास्ट ईयर के या फर्स्ट ईयर के कॉम्प्लेक्स टॉपिक में है, ये हाइपरबोलिक फंक्शंस में ये डेफिनेशन। तो जिसको डाउट रहेगा तो वो टॉपिक अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला दिया है, कोई प्रूफ वगैरह नहीं है, डायरेक्टली दे दिया है। तो आपको बस ये वैल्यू याद रखनी है। साइन के लिए साइन हाइपरबोलिक एक्स में बस यहाँ पे माइनस रहता है, ठीक है। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 को बाहर ले लेते हैं। ये 2 जो है वो कांस्टेंट है, आई कैन टेक आउट 2 कॉमन। 1/d² प्लस 1, यहाँ पे है e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस x। ये जो टर्म है ये इन दोनों को मल्टीप्लाई है, राइट। सो ये बन जाएगा 1/2 एज इट इज 1/d² प्लस 1 e रेस टू x प्लस 1/d² प्लस 1 e रेस टू माइनस x, राइट। अब इनको सॉल्व करना है। अगर राइट हैंड साइड पे e रेस टू x रहेगा तो आप सबसे पहली स्टेप ये होती है कि आप a की वैल्यू रिकॉग्नाइज करो। यहाँ पे a की वैल्यू है 1 और यहाँ पे a की वैल्यू e रेस टू ax से कंपेयर करेंगे इसको, तो a की वैल्यू यहाँ पे है -1। फॉर्मूला क्या है कि जब अगर राइट हैंड साइड पे e रेस टू ax है तो आप d² की जगह पे या d की जगह पे a की वैल्यू पुट करते हो। अब यहाँ पे होगा 1/2 एज इट इज, d के जगह पे 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1/1² प्लस 1 इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 1/a की d की जगह पे a की वैल्यू है -1² प्लस 1 ई रेस टू माइनस एक्स। ये तब ट्रू है जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है तो उसकी अगली केस है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ये भी वो 2 आ रहा है और ये भी -1² प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 2, राइट। एंड देयरफॉर दिस इज 1/2 e raised to x plus 1/2 e raised to minus x, राइट। सो ये होगा हमारा आंसर। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों तरफ क्या है, 2 है, तो ये बन जाएगा 1/2। ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो मैं कैन आई राइट दिस एज e raised to x plus e raised to minus x by 2। डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। लेकिन ये जो वैल्यू है ये हमने अभी जस्ट बताया आपको, इट इज नथिंग बट cos hyperbolic x and therefore your particular integral will become 1/2 cos hyperbolic x, right। अब ये आंसर और ये आंसर दोनों को ऐड करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। and therefore your final answer is general solution। the general solution is y is equal to yc plus yp। this will be nothing but c1 cos x plus c2 sin x प्लस द पर्टिकुलर इंटीग्रल जो कि हमारा मिला है 1/2 cos हाइपरबोलिक x। सो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, y ऑफ π/2 इक्वल टू 0, तो यूजिंग दोस कंडीशंस आप c1 c2 के वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। आया सबको समझ में? एक बार गो थ्रू कर लो।
फिर हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एक बार गो थ्रू कर लो, डाउट रहेगा तो पूछो, रेज योर हैंड। ऑलराइट, सबको समझ में आ गया? अनम्यूट करना है किसी को। आदिल, आ गया समझ में ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, सो अभी कितना टाइम बाकी है? एक और क्वेश्चन, आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ अभी, वो ट्यूटोरियल सेशन में आपको सॉल्व करने होंगे। होमवर्क एग्जाम्पल नंबर 1। Now this question was asked in 2019 examination. Find the extremal of, question same है, find the extremal of x1 to x2 y square minus y dash square minus 2y sin x into dx. First question. Second question, integration x1 to x2 y dash square plus 2y y dash minus 16y square into dx. Third question, integration x1 to x2 y under root y into 1 plus y dash square into dx. And the last question, fourth, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, इतने ये 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज लैग्रेंजेस मेथड, बट भी अटेंडेंस भी लेना है, तो एक काम करते हैं, ये टॉपिक हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, या इतना टॉपिक कर लेते हैं फिर अटेंडेंस ले लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है जियोडेसिक। जियोडेसिक definition is that a curve on a surface along which the distance between